which may be of 5% or 10%, their economic resources, their political setup, this is the one aspect that you need to give a reservation. Number one, if you see our constitution, Article 15 and Article 16, they said reservation is to be given where their interest is not adequately represented. Where a class whose interest is not adequately represented. This caste may be a ST, SC, BC, women, so and so, where their interest is not adequately represented. Now, when we are to calculate the adequacy of the representation, is there any data available with the government? Government say no, we do not have any data. Central government say we do not have a data. And if we have a data, then this is the data. On the basis of this, we say their interest is not adequately represented. For instance, they say we have to give the women reservation to the women in the political positions, in the MPs elections, because their interest in the Lok Sabha, in the Rajya Sabha is not adequately represented. That is why we want there should be equality. Everybody should be equal. So that is the reason we are giving reservation to the SC, ST, OBCs, because their interest is not adequately represented. No doubt, there is a class whose interest is adequately represented, but still they are taking the reservations. I understand. These may be your sentiments. Yeah, that's it. Some of the states has passed the law for the creamy layer, some of the states has not passed. Over, I can give you an example. The Honorable Supreme Court in a case, in Indira Sahni's case, they said we are to find out a creamy layer. Mean those whose income is, they have taken the benefit, now they are above the creamy layer, remove them from the reservation. Agreed. They asked the state to make the laws. State of UP has passed the law, state of Bihar has passed the law, and ultimately just due to political reasons, again this law was withdrawn. Reason being their political interest was not served with this. I understand the sentiments, but some of the states has passed the laws related to the creamy layer, and some of the states, like state of Punjab has not passed, state of Haryana has not passed. But it's just few states has passed the law, but still due to the political reasons that law was withdrawn. I understand your sentiments too also. I am Tina, I'm from History Department. My question is, before the Pune Pact... From which department? History department. Yes, sir. My question is, before the Pune Pact, Gandhiji was in a fast. So was it just political in nature or spiritual ideology was also behind People it? says, or those who are, with due regard, those who are the followers of Mahatma Gandhi say it was the spiritual, but other set of people, they say it was the political, and I say it was totally political. So can we say that in the Tripuri session in 1939, similar case can be seen when Subhash Chandra Bose was elected as the president of the International Congress session? Similar thing happened there also? No, because reason being, that was a different ideology. Yes. That was not ideology of as far as the social structure is concerned. Yes, sir. That was an ideology as far as Japan is concerned or India is concerned. That was total different thing. Our observation with reference to the constitution, but I believe this was total political rather than ideological. Yes, sir. All right? That's another matter to take up. That is the Congress, the differences Yes, between the Congress that was leaders difference. and Bose. Yeah. So that is another debate. So sir, thank you for the good lecture. I am Anand Kumar from History Department. सर मेरे 3 सवाल हैं आपसे. सर पहला तो पूना पैक्ट को लेकर. हिस्ट्री की डेट्स मत पूछना, मुझे नहीं आती. नहीं सर, डेट्स नहीं पूछ रहा एक्चुअली. सर पूना पैक्ट को लेकर आप इसको क्या कंपैरिजन कर सकते हैं हिंदू मुस्लिम का जो बंटवारा हुआ पार्टीशन से? व्हाट वुड बी द फ्यूचर इफ पूना पैक्ट वाज नॉट हैपेंड? अगर नहीं हुआ होता तो क्या फ्यूचर होता? और सेपरेट इलेक्टोरेट की जो प्रोसेस है उसका एग्जीक्यूशन किस तरह से हो पाता? उसमें क्या पॉपुलेशन को कहीं मूव करा जाता है या कुछ करा जाता है, और क्या वो एज अ सेकंड पार्टीशन स्टोरी बन जाता है? नहीं, ऐसे नहीं तो होता. इस तरह से अगर हम गांधी जी का अगर वो आइडिया उस तरह का कंपेयर करने की कोशिश करें, वो उनके उस क्या कहते हैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को देखने की कोशिश करें, तो उस पर क्या होगा? दूसरा सर, आपने उस पर बात करी थी हिंदू कोड बिल पे. हाँ, उससे पहले सर एक है कि जब आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डॉक्टर अम्बेडकर को एंट्री के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश फोर्स करना पड़ा उनको, उसमें सर एक क्लेम ये भी आता है कि जब मेंबर्स गांधी जी के पास जाते हैं और जब वो पूछते हैं कि इसमें डॉक्टर अम्बेडकर का नाम है कि नहीं है, तो कहते हैं नहीं है इसमें, तो कहते हैं इसमें उनका नाम होना चाहिए, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है. तो एक क्लेम ये भी आता है, उसका सोर्स तो मेरे पास है नहीं. लेकिन सर तीसरा है, जब आपने हिंदू कोड बिल की बात करी, उसमें सर एक्चुअली क्या है कि उसमें 3 बार उसकी डिबेट स्टार्ट होती है
और जो सबसे मेन डिबेट है वो शायद 1952 या 56 में है, 17 से 22 56 में सेकंड टाइम हुई है, थर्ड टाइम प्रॉब्ली हुई है, हाँ सर, फर्स्ट टाइम 51 में हुई। 17 सितंबर टू 22 सितंबर यस है। यस, इवन उसमें नेहरू भी पूरी तरह से सपोर्ट में है डॉक्टर वोट अम्बेडकर करते हैं पहले, यस। और उसमें कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स उठाए जाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और 2-3 लोगों की तरफ से, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। लेकिन क्या नेहरू और अम्बेडकर दोनों के आइडिया मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, उद्देश्य सेम है, लेकिन दोनों कुछ ना किसी चीज़ से समझौता कर रहे हैं। क्योंकि इवन नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेटर लिखकर भी कहते हैं कि हम इसको पास करा के रहेंगे, कुछ हो ना हो। लेकिन इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब माइनॉरिटी की बात, मुस्लिम्स की बात डाल देते हैं, इवन जब बाहर क्लैश की बात शुरू हो जाती है, तब नेहरू जी को ये कुछ ऐसा लगता है कि अभी देश उस सिचुएशन में नहीं है जो अगर क्लैश हो गया तो उससे झेल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अम्बेडकर को भी ये लगता है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन पावर बन चुके हैं, तो क्यों ना सोशल एविडेंस को ख़त्म करने की शुरुआत की जाए। तो दोनों ही किसी न किसी चीज़ से समझौता तो नहीं कर रहे। तो इस चक्कर में हम क्या डॉक्टर अम्बेडकर को भी ग्रेट हैं, नो डाउट हम मानते हैं, और उनकी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन क्या नेहरू और गांधी को थोड़ा उस तरह से क्रिटिसाइज ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्या? ये मेरे क्वेश्चन है। थैंक यू। I mean, three questions are really relevant. I suppose you are doing research on this topic. That is the reason some such type of questions comes in. No, as far as अगर पूना पैक्ट ना होता तो, राइट, पूना पैक्ट ना होता तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बातें सारी मान लेते, एग्रीमेंट ना होता, ठीक। तो अल्टीमेटली क्या होना था, बट आई फील इज कि उसमें एक रिप्रेजेंटेशन टू दैट क्लास विच was the sufferer from century to centuries and centuries and centuries. उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिलती, उनको पॉलिटिकल पावर मिलती, उनको सोशल पावर मिलती, सोशल पावर पॉलिटिकल पावर के साथ इकोनॉमिक पावर। एंड जिस वैल्यूज़ की जो बुद्धास की वैल्यूज़ की बात करते हैं, इक्वालिटी, एंड प्रॉब्ली ये फाइट लेटर ऑन होनी नहीं थी। तो क्योंकि वंस दे आर गेटिंग पॉलिटिकल शेयर, देन प्रॉब्ली ये कन्फ्लिक्ट जो लेटर ऑन आया उसके बाद इन बिटवीन गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, शायद वो ना आता। जो कन्फ्लिक्ट, सो कॉल्ड कन्फ्लिक्ट इन बिटवीन नेहरू एंड अम्बेडकर आया, शायद वो ना आता, नंबर 1। तो मेरे अकॉर्डिंगली उसके कॉन्सिक्वेंसेस, अगर वो एग्रीमेंट ना होता तो शायद बेटर कॉन्सिक्वेंसेस होते उसके, नंबर 1। एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो Pardon? सेपरेट, सर एग्जीक्यूशन कैसे होता है उसका? क्योंकि उसमें था सेपरेट इलेक्टोरेट, वहाँ पॉपुलेशन पे उसी पॉपुलेशन ही वोट करेगी। वो परमानेंट नहीं था सोल्यूशन, इट वाज नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन। बट रिजर्वेशन समथिंग बेटर देन दैट्स व्हाई आई से, क्योंकि जब 1934 में एक कॉन्सेप्ट आ गया कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आना है, तो इट मीन वी हैव स्टार्टेड ए डिस्कशन, वी हैव ओपनड ए प्लेटफॉर्म फ्रॉम 34, देन यू सी 37, 39, ये बातें हो रही थी 32 में, ये सारी जो डिस्कशन हो रही थी ना 32 की डिस्कशन। तो इट मीन आफ्टर दैट अगर वो अगर हो जाता तो ये परमानेंट नहीं जाना था। वंस द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी फ्रेम्ड, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सारा मैकेनिज्म सॉल्व होना था सारा। वो तो एक टेम्परेरी सोल्यूशन था कि इनको आने दो आगे, अब पहले रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं उनका, दैट वाज ए टेम्परेरी सोल्यूशन। वो अल्टीमेटली तो कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, कॉन्स्टिट्यूशन में सारी प्रॉब्लम सॉल्व वो वाकई हुई भी, 49 में प्रॉब्लम सॉल्व होगी सारी की सारी, नंबर 1। नो, सेकंड जो आप बात कर रहे हो उसकी हिंदू कोड बिल की, नो डाउट हिंदू कोड बिल में गांधी, नेहरू ने एंड बाकी और लीडर्स ने प्रॉमिस किया कि यस वी विल गो हैड विद दिस। डिस्कशन भी हुई, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम भी हुई, 56 में